Hey everyone, welcome to Magnet Brains। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें अभी हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है लेडी ऑफ द शैलेट, विच इज़ अ वंडरफुल पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अभी हम इसमें क्या देखने वाले हैं, इसका समरी हम देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, स्ट्रक्चर, पोएटिक डिवाइसेस सब खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। So answer the questions in a few lines. Who was the only person who knew about the Lady of Shalott living in the tower? How did he know about her presence? तो यहाँ बोल रहे हैं वो कौन सा ओनली पर्सन था जिसको लेडी ऑफ शैलेट के बारे में पता था, दैट शी इज लिविंग इन द टावर, और उसे कैसे पता चला? The reaper was the only person who knew about the lady of Shalott living in the tower. तो वहाँ जो रीपर था, जो वहाँ पे कटाई करने के लिए आता था, तो उसको सिर्फ पता था कि वहाँ पे एक लेडी रहती है जिसको बोलते हैं वो लोग लेडी ऑफ द शैलेट। और उसे कैसे पता चला? He knew about her presence when he heard her sing while he would be working in his field. उसे कैसे पता चला? उसने उन्हें गाना गाते हुए सुना था। तो हम एक बार फिर इस आंसर को देखते हैं। द रीपर वॉज द ओनली पर्सन हु न्यू अबाउट द लेडी ऑफ शैलेट लिविंग इन द टावर। रीपर ही सिर्फ एकमात्र ऐसा इंसान था जिसको पता था कि वहाँ एक लेडी रहती है। He knew about her presence. उनको उस रीपर को उसके प्रेजेंस के बारे में कैसे पता था? When he heard her sing while he would be working in his field. जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता था तब उन्होंने उसे गाते हुए सुना था। What means of transport could one use to travel from the island to Camelot? अब आइलैंड से कैमलट में जाने के लिए किस तरीके का what means of transport would they use? The only means of transport one could use to travel from the island to Camelot was a boat. आइलैंड और कैमलट तक जाने के लिए, बिकॉज वो आइलैंड पे था तो वहां तक आप पैदल तो जा नहीं सकते, the only possible option was a boat. Find examples of personification in the poem and explain them. तो हम personification का एक example तो देख चुके थे। Basically अगर आपका first stanza आप देखोगे उसमें दिया हुआ है the green shaded daffodili tremble in the water chilly. तो now here ये जो green shaded daffodili है, can they tremble? No, they cannot tremble. Only living beings can tremble. So here ये जो daffodils हैं, they are imagined to be a person who trembles in the cold water. Similarly, willows whiten. This is whiten. Willows whiten as per shiver. Here the asper trees are imagined to be people who shiver as it is cold. Again यहाँ पे aspers को उन्होंने personify किया है that they are shivering. कैसे shiver कर रहे हैं? Because it's very cold. Write down two examples of alliteration in the poem. अब poem में तो बहुत सारे alliteration के example हैं, तो दो examples हमने दिए हैं। The reaper reaping late and early. यहाँ पे R का sound जो है वो repeat हो रहा है। Here's her ever chanting cheerily. यहाँ पे chanting में chanting और cheerily में C का sound repeat हो रहा है, और here's her में her का sound repeat हो रहा है। Okay? Answer the questions with reference to context. अब आपको context दिया हुआ है। Underneath the bearded barley, the reaper reaping late and early. अब underneath the bearded barley मतलब ये जो घने घने बाली के पेड़ हैं, क्रॉप्स हैं, उसके अंडर में एक रीपर है जो सुबह से लेकर रात तक रीप करता रहता है। What does the phrase bearded barley mean? इस bearded barley का मतलब क्या है? इसमें कौन सी figure of speech को यूज किया गया है? The phrase bearded barley means the barley plant is covered with dense spiked leaves. Bearded barley का मतलब है कि जैसे beard होती है वो कैसी होती है, एकदम चुपती हुई सी, एकदम टोटली कवर्ड होती है, उसी तरीके से जो बाली का जो पेड़ है वो dense मतलब बहुत ही घने लीव्स से जो है वो पूरा भरा हुआ है। The phrase bearded barley is an alliteration जिसमें B को continuously B का साउंड आ रहा है, B का साउंड रिपीट हो रहा है। ओके? What work did the reaper do? तो रीपर क्या काम करता था वहाँ पे? The reaper used to reap the barley day and night. तो रीपर वहाँ क्या काम करता था? The reaper used to reap the barley day and night. Next question है, what could the reaper hear while he worked in the field? What was his reaction to it? मतलब जो रीपर क्या सुनता था जब वो काम कर रहा होता था अपने खेत पे, और उसमें उसका क्या रिएक्शन होता था?
While the reaper worked in the field, he could hear the lady of Shalott sing. तो जब वो काम कर रहा होता था, he could hear the lady of Shalott sing. वो lady of Shalott को सुनते मतलब गाते हुए सुन पाता था. The reaper who was tired of his continuous work, जो अपने सुबह से काम करते करते थक गया था, was happy and enchanted to hear the lady sing. वो बहुत खुश हो जाता था, एकदम enchant हो जाता था लेडी को सुनते हुए. The little isle is all enrailed with a rose fence and overtrailed. So which isle is being referred to in these lines? Describe its natural beauty. तो यहाँ पे किस isle की बात हो रही है, किस island की बात हो रही है? The island of Camelot is being referred to in these lines. यहाँ पे island of Camelot की हम बात कर रहे हैं. The little island is surrounded with rails from which roses hung. उसमें बहुत सारे रेल्स रखे हैं जहाँ से रोजेस जो हैं वो एकदम लटक रहे हैं. Very often sailing boat could be seen in the water around the island. और बहुत बार जो है सेलिंग बोट्स भी दिखती है जो आइलैंड से आसपास से गुजर रही होती हैं. Who lived on the isle? उस आइल में कौन रहता था? Why did she live there? ओके यहाँ पे ये जो है ना, ये जो लिटिल आइल इज ऑन, तो दिस इज नॉट कैमलेट. इसको प्लीज आप काट के शैलेट कर लीजिए. SHALOTT. So the island of Shalott is being referred to in these lines. The little island is surrounded with rails from which roses hung. Very often sailing boat could be seen in the water around this island. क्योंकि हम समझ चुके थे, you remember कि वो जो टार है उसके आसपास बहुत सारे जो हैं रोजेस के प्लांट्स हैं. वहाँ पे जो रोजेस के प्लांट वहाँ पे लटक रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं. और कभी कभी जब बोट्स आती हैं तो उसकी वजह से वो घिसते हुए चला जाता है. Who lived on the isle? Why did she live there? So the lady of Shalott lived in the isle. On the isle. तो जो lady of Shalott है वो इस island पे रहती थी. She lives on the isle because she has been cursed. क्योंकि वो cursed हैं, इसीलिए वो वहाँ पे रहती थी. Describe in your own words the appearance of the person. अब ये जो पर्सन थी, जो लेडी की हम बात कर रहे हैं, वो कैसा उनका अपीयरेंस था? वो अपने सर में एक पर्ल का हेडबैंड पहनती थी, प्लस वो एकदम रॉयल क्लोथ्स पहनती थी, वेलवेट के बेड पे सोती थी और बहुत मीठा गाती थी. तो हम ये देखते हैं, द लेडी ऑफ शैलोट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. शी वेयर्स अ रॉयल रोब एंड राउंड हर हेड शी वेयर्स अ गार्लैंड मेड ऑफ पर्ल्स. तो वो रॉयल रोब्स पहनती हैं और अपने सर पे यहाँ पे एक गार्लैंड पहनती है जो पर्ल्स की है. No time hath she to sport and play, a charmed web she weaves always. अब ये जो दो लाइन्स है, नो टाइम हैथ शी टू स्पोर्ट एंड प्ले, मतलब उनके पास कोई टाइम नहीं था फन का या प्ले का. किसके पास नहीं था? लेडी ऑफ शैलोट के पास नहीं था. अ चार्म वेब शी वीव्स ऑलवेज. और वो दिन भर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैजिकल सा वेब जो है वीव करती रहती थी. हु इज शी इन दिस लाइन्स? कौन है? शी इन दीज लाइन्स इज लेडी शैलोट. What do the words sport and play mean? Why did she have no time? Why did she not have time to sport and play? This is RT. So the word sport and play means amusement, मतलब entertainment. She has no time for amusement as she is busy weaving. उनके पास amusement का कोई टाइम नहीं था, fun का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वो दिन भर सिर्फ weave करती थी. What did she weave on her web? उन्होंने अपने वेब पे क्या वीव किया था? जो अलग अलग फोटोज जो हैं, जो भी वो देखती थी मिरर में, उसको वो वीव कर लेती थी. She weaves the things which she sees in her blue mirror. वो वीव करती थी जो वो अपने ब्लू मिरर में देखती थी. Before her hangs a mirror clear, reflecting towered Camelot. तो यहाँ पे उनके सामने एक मिरर था जिसमें कैमलेट का टावर दिखता था. What was the purpose of the mirror for the lady? लेडी जो थी उसको बाहर देखना अलाउड नहीं था, वो कर्स थी, तो वो इस मिरर के थ्रू बाहर देख पाती थी. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द लेडी वॉज फॉरबिडन टू लुक आउटसाइड. मतलब उन्हें फॉरबिडन मतलब उनको टोटली मना था बाहर देखना. सो द लेडी यूज टू वॉच द वर्ल्ड गो बाय इन द मिरर. तो वो जो लेडी थी पूरी दुनिया को कैसे देखती थी? मिरर के थ्रू देखती थी. What sights did the lady see in her mirror?
कैसे, कौन कौन से साइट्स उन्होंने अपने मिरर में देखे थे? सो इन हर मिरर द लेडी सॉ द पेजेंट्स, जो फार्मर्स होते थे, यंग गर्ल्स, शेफर्ड बॉय, पेज एंड नाइट्स। ओके तो क्या क्या देखा उन्होंने मिरर में? उन्होंने देखा पेजेंट्स को, यंग गर्ल्स को, शेफर्ड बॉय को, एबिट को, पेज को, नाइट्स को, और फ्यूनरल को भी देखा था उन्होंने, और कपल को भी देखा था, रिसेंटली वेड कपल को। Which two sights saddened her? अब दो साइट्स ऐसे थे जिसने उन्हें बहुत दुखी कर दिया था, और ये कौन कौन से साइट्स हैं? The two sights which saddened her were the nights and two young lovers. So इसमें यहाँ पे nights नहीं है, were the funeral and two young lovers. एक फ्यूनरल है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और एक टू यंग लवर्स को देख के उन्हें बहुत दुख हुआ था, जो कि क्रिएशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। नाउ थिंक एंड आंसर। What are the elements that create an aura of mystery and suspense around the character of the Lady of Shalott in this poem? So इस poem में Lady of Shalott के अराउंड बहुत ज़्यादा mystery create की गई है, suspense create किया गया है। तो वो कौन से elements हैं जिसकी वजह से mystery आती है? The Lady of Shalott is mysteriously imprisoned on a remote island in the middle of a river. तो जो लेडी ऑफ शैलेट है उनको मिस्टीरियसली इम्प्रिजन्ड है, वो हमें नहीं पता किसने किया है, कब किया है, कौन सा कर्स है, कैसा कर्स है, हमें कुछ नहीं पता, तो ये एक मिस्ट्री है। तो मिस्टीरियसली वो इम्प्रिजन्ड है एक बहुत दूर दराज के रिमोट आइलैंड में। She knows she will be cursed unless she fulfills what she has been given to do. उन्हें पता है कि जो काम उन्हें दिया गया अगर वो नहीं करेंगी तो वो cursed रहेंगी। Weave a magic web and ignore the world beyond. So उन्हें क्या काम दिया गया है? आपको एक मैजिक वेब बनाना है और आप वर्ल्ड को नहीं देख सकते। Expect to view it in shadows. और आपको सिर्फ इसको shadows में ही देखना है, जो आपके सामने मिरर है बस आप उसमें ही देखोगे। Okay? Next. Do you think the Lady of Shalott enjoyed her way of living? Use lines from the poem to explain your answer. तुम्हें लगता है कि वो जिस तरीके से रहती थी she was happy? Yes, she was like, the thing is she was happy क्योंकि उन्होंने बोला था she had no time to like fun or play, and she was happy with her weaving, but then she also wrote that she was frustrated with living the life in a world of shadows. तो इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि वो खुश थी या वो दुखी थी। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से फॉर सर्टन वेदर द लेडी ऑफ शैलेट एंजॉयज हर कन्फाइनमेंट इन दिस आइलैंड टावर। मतलब ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो लेडी थी डिड शी, मतलब वो इंजॉय किया, जो कन्फाइनमेंट मतलब जो वो बन के रही थी, वो क्या वो उस चीज़ को एंजॉय करती थी? ओके She is under a curse that restricts her from living a complete life. वो एक ऐसे कर्स में है जहाँ पे वो एक complete life नहीं जी सकती. The truth of the matter seems to be that the Lady of Shalott doesn't have much time for enjoyment. और यहाँ पे हमें पोम पढ़ के ये भी समझ में आता है कि लेडी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो enjoy करे, क्योंकि she is cursed, उनको पूरे टाइम वीव करना है, given that she is constantly busy with her weaving. So क्योंकि उनके पास इतना वीविंग का काम है तो उनके पास एंजॉय करने का कोई टाइम है ही नहीं। How was life in Camlet different? Okay, wait. So how was life in Camlet different from the life in the island where the lady lived? तो ये जो कैमलेट की लाइफ थी और जहाँ पे वो शैलेट के टार की लाइफ थी, दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस था? The first section characterizes Camlet as a hub of activity. यहाँ वो बता रहे हैं जो कैमलेट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. It is filled with life and the freedom to come and go. वहाँ पे ये जो कैमलेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ है, वो लाइवली है, वहाँ फ्रीडम है, आप जब आओ चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो. लेकिन कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो शैलेट इज़ अ साइलेंट आइल. शैलेट एक साइलेंट आइलैंड है दैट हाउसेस अ लोन वुमन इन अ टावर, जिसमें सिर्फ एक टावर है जिसमें एक अकेली औरत रहती है, अननोन टू ऑल, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक रीपर को पता है वो वहाँ रहती क्योंकि उसने उसकी आवाज़ सुनी है. Mention two examples of imagery in the poem that you find appealing. अभी जैसे हमने इमेजरी की बात की थी तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे on either side the river lie, long fields of barley and of rye that clothe the world and meet the sky.
तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक नदी बह रही है, उसके दोनों तरफ जो है खेत है, बार्ली का खेत है, राई का खेत है, और उसकी फसल इतनी ऊंची ऊंची है जैसा लगता है कि बस स्काई को टच कर लेंगी. Flowing down to Camelot, 4 grey walls and 4 grey towers overlook a space of flowers and the silent island bars. So यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि flowing down to Camelot, 4 grey walls and 4 grey towers. तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत बड़ा सा टावर जहाँ पे वो ग्रे वॉल से बना हुआ है और जहाँ पे आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड उसमें उसने किसी को बंदी बना के रखा है. नाउ आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोम. पोम की राइम स्कीम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ए ए ए ए बी सी 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 बी. ओके, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोम विद देयर मीनिंग्स. तो यहाँ पे हम हर वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग्स बताती हूँ. जैसे फ्लिटिथ, फ्लिटिथ का मतलब क्या है, मूव्ड लाइटली एंड क्विकली. ये वर्ड कहाँ यूज हुआ था, जहाँ हमने बोला था कि शैलोप, जो छोटे छोटे बोट्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं लेकिन बहुत फास्ट चलते हैं, तो शैलोप फ्लिटिथ मतलब शैलोप जो है वो दे मूव्ड क्विकली एंड रैपिडली. क्रिम्सन क्लैड किसके लिए यूज हुआ था, इसका मतलब क्या है, क्रिम्सन का मतलब होता है एकदम सुर्ख लाल कलर, और क्लैड मतलब क्रिम्सन क्लैड मतलब ड्रेस्ड इन रेड. 2 and 2 का मतलब क्या हुआ, अ पेयर, मतलब पेयर में आते हैं, 2 नाइट्स आ रहे थे. नो अदर केयर, इसका मतलब विदाउट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेटली वेड मतलब जिसकी अभी अभी शादी हुई है, रिसेंटली मैरिड. चैंटिंग चीयरली मतलब चैंटिंग का मतलब होता है सिंगिंग एंड चीयरली मतलब हैप्पीली. रॉयली अपैरल्ड मतलब अपैरल्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो रॉयली मतलब बहुत रॉयल क्लोथ्स. ड्रेस्ड इन रिच क्लोथिंग लाइक अ किंग. एम्बलिंग पैड का मतलब होता है अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वॉक, एकदम जैसे एक घोड़े पे चल रहे हो या स्लो एंड रिलैक्स्ड वॉक है तो उसको बोलते हैं एम्बलिंग पैड. Now the Lady of Shalott lives in a grey castle while she weaves a tapestry using vivid colors. Here are some expressions using color. आपको इन सारे expressions के मतलब बताने हैं और sentence में use करना है. So blacklist का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कहीं से निकाल देते हो या उसको टोटली जो है आप बाइकआउट कर देते हो उसको. जैसे कि मान लो अगर आपने कुछ बहुत गलत किया अपने क्लास में या स्कूल में, तो आपको स्कूल में ब्लैकलिस्ट अगर कर लिया तो आपको कभी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा. A list of people or things that are regarded as unacceptable or untrustworthy and should be excluded or avoided. वो लोग जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जो जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और जिन्हें हटा देना चाहिए, वो होती है ब्लैक लिस्ट. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he was placed on a blacklist which meant he was unable to get credit. उन्हें एक ब्लैक लिस्ट पे रख दिया गया था, इसका मतलब उन्हें किसी तरीके का पैसा नहीं मिल सकता था, कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता था. वाइट लाई का मतलब होता है एक हार्मलेस लाई, मतलब सफ़ेद झूठ का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई एक हार्मलेस लाई है जो आप ना यूजुअली किसी को हर्ट नहीं करने के लिए बोलते हो. सो अ हार्मलेस और ट्रिवियल लाई स्पेशली वन टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स. सो व्हेन आई वाज यंग आई टोल्ड लिटिल वाइट लाइज. जब मैं छोटा था तब मैं छोटे मोटे वाइट लाइज बोल देता था. गिव द ग्रीन लाइट, किसी को ग्रीन लाइट देना मतलब किसी को किसी चीज़ की परमिशन दे देना, अलाउ कर देना. टू गिव ऑफिशियल अप्रूवल फॉर समथिंग टू बी डन. द काउंसिल हैज़ गिवन द ग्रीन लाइट टू द न्यू शॉपिंग सेंटर. सो जो नया शॉपिंग सेंटर है उसको ग्रीन लाइट मिल गया है, मतलब उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिल गया है. आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से, विदाउट एनी वार्निंग और अनएक्सपेक्टेडली. तो जैसे कि शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू और शी फोन्ड मी आउट ऑफ द ब्लू. पिंक स्लिप का मतलब होता है अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. पिंक स्लिप का मतलब है जैसे कि आपको मना कर दिया कि अब आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निकाल दिया गया, उसे कहते हैं पिंक स्लिप. अलॉन्ग विथ थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टील वर्कर्स आई गॉट पिंक स्लिप्ड, मतलब इतने सारे स्टील वर्कर्स को निकाल दिया, उसमें एक मैं भी था, मुझे भी निकाल दिया गया. आई गॉट पिंक स्लिप्ड. ओके, अब हम आते हैं एडवर्ब फ्रेजेस में. एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, वो फ्रेजेस, पहले तो फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. सो फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते. जैसे इन अ रूम और ऑन अ टेबल, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता क्या काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस, फ्रेजेस जो होते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस में डिवाइड होते हैं. तो बेसिकली फ्रेज मतलब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस.
अब वो पार्ट अगर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं। एडवर्ब फ्रेजेस लाइक एडवर्ब्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड व्हाई समथिंग हैपेंड। मतलब एडवर्ब फ्रेजेस एडवर्ब्स ही होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, या कितनी बार हो रहा है। तो इसी तरीके से एडवर्ब फ्रेजेस भी इसी चीज़ को रिप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द हंग्री बॉय वोल्फ डाउन हिज लंच विथ ग्रेट डिलाइट। द हंग्री बॉय वोल्फ डाउन हिज लंच विथ ग्रेट डिलाइट, मतलब उसने, जो बहुत भूखा सा बच्चा था, उसने एक साथ पूरा खाना बहुत खुशी के साथ खा लिया। कैसे खाया? हाउ डिड ही ईट? विथ ग्रेट डिलाइट, बहुत खुशी के साथ खाया। हाउ डिड ही ईट? विथ ग्रेट डिलाइट। तो ये विथ ग्रेट डिलाइट एक एडवर्ब फ्रेज है। The lady of Shalott lived in a grey castle. My question is, where did the lady live? Where did the lady live? In a grey castle. तो in a grey castle क्या हो गया? ये हो गया एक एडवर्ब फ्रेज। अब इसमें आपको करना क्या है? Underline the adverb phrases in these sentences. After the game, the king and pawn go into the same box. गेम जब खत्म हो जाता है चेस का तो उसमें किंग और पॉन जो है वो एक ही बॉक्स में चले जाते हैं। बेसिकली इस सेंटेंस का एक बहुत डीप मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? जब आप मर जाते हो तो आप दोनों ही जलाए जाते हो, दोनों ही दफनाए जाते हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। सो आफ्टर द गेम द किंग एंड द पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स। अब इसमें देखो आफ्टर द गेम, अब इसमें मैं दो क्वेश्चन कर सकती हूँ। व्हेन, कब ये किंग और पॉन जो है वो सेम बॉक्स में जाते हैं? आफ्टर द गेम। ये किंग और पॉन कहाँ जाते हैं? इनटू द सेम बॉक्स। तो यहाँ पे दो एडवर्ब्स हैं, दो एडवर्ब फ्रेजेस हैं। आफ्टर द गेम जो कि आपको बताता है कि कोई काम जो है कब हो रहा है, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। और ये है कहाँ जाते हैं? इनटू द सेम बॉक्स, ये भी एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब इसमें देखो You cannot go anywhere near the house after sundown. You cannot go where? Anywhere near the house after sundown. या आप ये बोल सकते हो You cannot go anywhere near the house when after sundown. तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया? You cannot go anywhere near the house when after sundown. ये दो सेपरेट एडवर्ब फ्रेजेस हैं। He always sings on a lower scale. अब वो कब, हमेशा कब, कहाँ, कैसे गाता है? On a lower scale. तो ये हो गया आंसर। He fired his gun without thinking of the consequences. उसने अपनी जो फायर गन को फायर कर दिया, उसने सोचा भी नहीं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो he fired his gun. How did he fire? Without thinking. कैसे फायर किया उसने? बिना सोचे। तो without thinking is your answer. He will be back in office after the end of the match. When will he be back in office? वो कब आएगा ऑफिस वापस? After the end of the match. She leaned on a velvet bed. Where did she lean? कहाँ लीन किया? On a velvet bed. ये हो गए आपके एडवर्ब फ्रेजेस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एडवर्ब फ्रेजेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कि she got out of bed in a sleepy manner. तो ये जो पूरा दिया हुआ है in a sleepy manner, ये जो है, just a second, ओके, सो इन अ स्लीपी मैनर जो दिया हुआ है, ये आपको क्या बताता है? हाउ डिड शी स्लीप? एकदम स्लीपी मैनर में। अब हमें इसकी जगह एडवर्ब यूज करना है, फ्रेज हटा के एडवर्ब यूज करना है। तो हम क्या बोलेंगे? शी गॉट आउट ऑफ द बेड स्लीपीली। बहुत सिंपल है, स्लीपीली। अमल वेटेड इन साइलेंस फॉर द सन टू कम अप। अमल कैसे वेट किया? हाउ डिड ही वेट? इन साइलेंस। तो आप कैसे बोल सकते हो? साइलेंटली। डू यू नो एनीवन हु इज फ्री एट दिस मोमेंट टू टेक अप द प्रोजेक्ट? क्या आप किसी को जानते हो जो इस मोमेंट पे फ्री है? तो आप क्या बोलोगे? हु इज फ्री मोमेंटरली। एट दिस मोमेंट को क्या बोलेंगे हम? मोमेंटरली। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्या है? In every place that we stopped during our travels, the people were kind and pleasant.
in every place that we stopped. So wherever we stopped, in every place मतलब जहाँ भी, तो wherever कर दो या everywhere we stopped कर दो. At the end of a long day, Samuel walked home in a tired way. Samuel walked home. How did he walk home? एकदम tired way में, तो tiredly खत्म. तो ये हो गया tiredly, वो हो गया wherever. That's it. Yay, we are done with this video as well. We are done with the 6th chapter of our class 7 engaging English book. But picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, because हमारे पास बहुत सारे chapters बचे हुए हैं. And जो हम next chapter करने वाले हैं, chapter 7, the homecoming. It is a story which I read for the first time when I read it. I read the original piece क्योंकि आपकी जो book है उसमें abridged version है, थोड़ा small short version है. I had tears in my eyes. Now all my students out there, trust me, you will read it, you will feel something in your heart, a little twitch. Okay, so be prepared for it because the next video is coming out soon. And also do not forget to visit our website magnetbrains.com because it is very easy to find out the videos out over there. Just click on the class, click on the subject, then select the topic, your video will appear. That's it. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.